Bismillahirrahmanirrahim. This is day 7 of our CAPS calculation, and today we will do allegation method, allegation method, allegation method. This is the only topic for today. There are several types of allegation equation we can use. So we will learn and practice it live today. Please mute yourself. Guys, before jumping into today's lecture, there are two things from previous lecture I need to clarify. First of all, we have learned simple formula of dilutions. Let me show you an example of how wild it can be during practice. So chapter 7, 7.2. Take a look at this for this formula. Last time we practiced this first section, and then one dilution section and one answer section. But if they give you more dilutions, just like they have given here, let's take one as example. 400 mg of drug was weighed out and diluted to 10 gram. This is the first one, 400 mg diluted in 10 gram, converted into mgs. Again, 1 gram of this powder is mix was further diluted to 10 grams. So again, we have written here 1000 mg divided by 10,000. And this way, they have made 1, 2, 3, 4, 5, 6 dilutions. Sorry, 1, 2, 3, 4 dilutions. So there is no limit to the number of dilutions. This is how wild the formula can go. I think everybody understands this now, that if they give you multiple dilutions, just add this multiply sign and write down the next dilution. The other point is, we have gone through the question where this was the question. How many milligrams of salbutamol sulfate would be required to prepare 10 ml? This was the problem, the 1000. We looked at where this 1000 came from. And in the book, what they have done is they have converted this whole thing 0.2 mcg per ml. Both of these they have converted one step above, and they have given us 0.2 mg. Same, they should have converted it. This upper part is from book and this lower part is from my teaching. This is how I told you how you should do it. So let's take a look. In the book, they have converted this 0.2 mcg into 0.2 mg. And for this purpose, they have to convert this per milliliter to 1000 ml. That's why it was there. But if we do it our own way, and if we simply convert this 0.2 mcg to mg, take a look here, 0.2 mcg to 0.2 mg by dividing it with 1000, it will give the same answer of 10 mg. So I recommend you to follow this method. Do not go with this method written in the book. It will confuse you a bit to change the units up and down. Just go with the single unit conversion and keep the rest the same. Anybody have any question here? Anybody understood what I just told you? Yes, sir. Yes. किताब में क्या हो रहा था? किताब में ये 0.2 mcg को 0.2 mg में एक तो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, और स्मार्टनेस के लिए इन्होंने पर ml वो भी बढ़ा दिया फिर, क्योंकि 0.2 mg करेंगे तो फिर ml भी बढ़ेंगे. तो इस तरह ना करें, आप नहीं करें, किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं करें. आप सिंपली जो यूनिट कन्वर्जन चाहिए उसको करें. 0.0002 mg बन जाएगा, ये हमारे लिए बेहतर है. लर्निंग इजी है ना, क्यों एक एक्स्ट्रा स्टेप डालना. तो आंसर देखें, दोनों का 10 mg सेम आ रहा है. So you go with this way. Okay, we are moving forward now with our allegation method. First of all, allegation is very simple. A lot of people get in fear with the name of allegation. It's not alligator, it's allegation method. It's simpler.
In fact, just like we did with the dilution formula, we will be doing with the alligation today, and you will see how simple it is. And I will try my best to keep it simple as possible, more than from my previous that 2-hour video of calculations. I'll make it easier today. So what is alligation method applied in what type of questions in which we apply alligation method? They will give us two solutions. For example, the first concentration is 70% HCl solution. The second is 30% HCl solution, and they want us to make a concentration in between of these two, always in between of these two. 50%, 40%, 65%, whatever it is. It will be in between of these two concentrations. Here we will apply alligation method. With this picture in mind, to keep this picture in mind, I will be making up a formula with this picture. So 70% and 30%. We take some part from 70%, some part from 30%, and we will make 50% of the solution. तो इस तरह का आपको कंसेंट्रेशन दी होगी, तो यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर लेना कि ये क्वेश्चन कौन सा. You identify from this picture that this is an alligation method. All right, moving forward, let's see what is the formula of alligation. From this image, we can see one concentration is 70%, other concentration is 30%, and the required concentration or desired concentration is 50%. You write it this way on your paper. Now, why this 70% is up and 30% is down? Very important point. Whichever of this is higher, you will write it on the higher side, on the upper side. So 70% will go up, 30% will come down. Whatever the higher percentage is, it will go up. This 50 is desired concentration comes here. Very important, very important. While doing this calculation this way, from 70 and 50, we will do 70 minus 50 is equal to 20. This will go this way by doing a minus. 70 minus 50 is 20. But when we go this way, we will do 50 minus 30 is equal to 20. We'll go this way, and here we go this way. 70 minus 50 is 20. 50 minus 30 is 20. Is this understandable to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So Okay. there will be no negative sign. Yes, sir. No negative sign, just there is no negative sign. If we do it mathematically, there won't be any negative sign. The next step, okay, this is one step complete of the formula. A question can ask you to just solve it at this step. कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना, जिसमें आपसे पूछेंगे कि कितने पार्ट इसके हम यूज कर लें 70% सोल्यूशन के, कितने पार्ट 30% पे यूज कर लें, तो ये इसका आंसर यहाँ पे आता है. We'll see in practice. The next step involves adding these two numbers 20 and 20 and write it down here. Add up these two numbers 20 and 20, it comes 40. Write it down in the denomination. Then we will write it right here is the desired volume, that how much volume we have to make. For example, they gave us in the question we have to make 1000 ml. So we write it 1000 ml, and here comes the answer. This is the alligation method. How difficult it is? It's very simple, way simpler than a combination of percentage weight by volume questions. This is the whole thing. This is the second step. That's it. If they asked us that we have to make 1000 ml of a solution, then how much of this 70% solution will make? This is the answer. And this answer belongs to this percentage, and this answer belongs to this percentage. अब मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ. ये हमने कैलकुलेशन यहाँ तक कर ली, ये प्लस करके 20 20 40 भी लिख दिया हमने. अब ये जितना हमें कहेंगे ना कि आपने
इस 600 ml बनाना है, आपने 1000 ml बनाना है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जो अपर पार्ट है, this upper part is 1 and this lower part is 1. This answer belong to this solution, and this answer belong to this percentage of solution. I think this is clear. You can write this formula down a couple of times, 2 to 3 times at least. Sorry, is there any question? Sorry. 1000 को नहीं कर किसी भी चीज से आपने अंडरलाइन बनाया है इसको, इसके नीचे आपने नहीं लिखा कुछ भी। ये ये मैंने वैसे न्यूमरेटर है या जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है 1020/40 से? जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैंने वैसे ही अंडरलाइन किया था इसको हाईलाइट करने के लिए। इस फॉर्मूला को आप लिखें 2-3 दफा, फिर हम आगे चलते हैं। सारे लिखें काइंडली। Okay, done everybody? यस। Yes. Yes. This is one step done. अच्छा, हम परसेंटेजेस में नॉर्मली 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 1000 क्यों मल्टीप्लाई करा है? अपनी मर्जी से किया मैंने, 1000 आगे क्वेश्चंस में देखेंगे डिफरेंट होगा। ओके। इट्स नॉट दैट परसेंटेज, ये हमने फाइनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, जितना फाइनल वॉल्यूम हमें दिया होगा, जैसे हम देखते हैं इसके अंदर। वेरी करेगा क्वेश्चन टू अच्छा, क्वेश्चन। मुझे 1 मिनट आप जरा होल्ड कीजिए। Okay, now let's solve a question. Can you read this question? This quiz question 7.12. This is readable? Yes. Okay, let's see. In what proportions would 5% salicylic acid in zinc paste and 8% salicylic acid in zinc paste be mixed to make a paste containing 6.5% salicylic acid? So skip all these parts. Zinc paste, there are three things. In what proportion should be 5%? Mix 5%, 8% to make 6.5%. This 8% and 5% we have to mix, and this is our desired concentration 6.5. So this 8%, this is higher, it will go up. This 5% is lower, this goes down, and 6.5 desired comes here. 8 minus 6.5, 1.5, 7, 8. 6.5 minus 5, 5, 6, 1.5 again. In what proportions? Question solved. They have not given us any this final volume. So we won't do it. This is it. Question solved. We will add 1.5 ratio 1.5 part of 8%, 1.5 part of 5%. That's it. Now we do one more question, and then I will let you do the questions. This is clear? Everyone, is Yes, this sir. clear how we do Yes, it? it's clear. Yes, yes. Perfect.
Now we'll do another question, a bit complexer question. Work example 6.11. With this one. In what proportions would ethanol 95% and ethanol 50% be mixed to make ethanol 70%? Again, we'll do this. We have to mix these two. Should ethanol 95% and 50%, and what is desired is 70%. 95 is bigger. जो बड़ी होती है हम उसको फिर यहाँ ऊपर लिखते हैं 95%. This 50 comes down 50%. What is desired is 70%. 95 minus 70 is 70, 80, 90, 25, and 70 minus 50 is 20. 20%. Yes, this is answer. If they give us some like this in the lower question, you can see they have given us 48 ml. If this is the case, we will multiply. We will add these two numbers first. 20, 25, 45, 45, and then we'll multiply it by 480 if this is the case. And answer will be there. Everybody understand this? Sir, from where did we get 480? Sir, from where did we get 480? Okay, you're talking about next question. If they have given us any volume that we have to make 480 ml, in this question we are doing, Sir, there in is the no above such question, there thing. is no given volume. Yes, then there is no need of doing this part. All So this just part for is not. example, This is just for example. Samir, I have one question if you don't mind. Yes, please. Let's say the answer comes out like 20 parts, add 20 parts to this. How practically does it work? What is 20 parts? Like as in practical manner? Like I have to make 20 parts, add 20 parts. How would I do that? Take a look at this. For example, they have given here this 20 and 25. If we round this down, they will come down to 4:5. Okay. In this case, they won't want any detail further from you. They will be just how many parts of this 95% solution. They will ask you just about it, and this is going to be the answer. We have covered this part thing in second last or third last lecture in detail. Now we need to move forward. But for this question type, this is not important. You just go through our second last or third last. Got it. Continue. Okay. So this is simple. One thing I told you is that greater percentage is going on top, and how we are doing plus and negative. It's already told in the formula. Now let's move forward. Now it's time for you to do the practice. Okay, I want you to write the formula. Do not calculate the answer. Just put the values in the formula yourself. You can raise your hand for those of you who have filled the formula. Good. If anybody have any question, you can ask. Should be done by now. So I am showing you the answer now. Let's take a look at the question. You are required to make 100 ml. Now this 100 ml we were talking about in the previous drawing, that where we need to multiply it by 100. This is what volume of 5%. This is 5% and 15%.
we need to use these two solutions to make 10%. So very less number of person are raising their hands. That means they are still confused. This is the answer. Only 4% raised hands. It's not good, man, not good. You just need to scan where are the percentages that we are going to use and what is the desired percentage. That's it. So in this case, this 15% and 5%. These were the solutions to use, and the desired percentage was 10%. And this 100 is the final volume we need, and answer will come this way. I want you to write it down on your paper, this answer thing. By looking at the question, write this down on your notepad. वकास आप लिख रहे हैं? Yes, sir. I'm writing. Okay, everybody done? Yes, sir. Sir. Yes. You need to be quick. More questions are coming and we are short on time, so we will move fast. Next question, fill this up in formula. माशाल्लाह 4 लोगों ने कर लिया। ज्यादा करें लोग, ये 17 लोग बैठे हैं, 17 लोग करें, ये आप लोगों के फायदे के लिए है। Nine plus. Okay, let's reveal the answer. This is the answer. So these are the two things, 15%, 5%. And the desired was 7.5, and rest, you know, this 50 gram is the final volume or mass. So this is going to be the Sir, answer. I have a question, sir. Yes, सर वो yes. जो 10 है I have a question. वो 10 कुछ- कौन सा है? ये 10, ये 7.5 और 2.5 को जो प्लस 6.5 करके हम लिखते हैं 7.5. वो ये 10 आ पॉइंट जाता का है। है Sir, we are multiplying it by सर 50. पॉइंट Sometimes के we अगेंस्ट multiply it 10 है। एक मिनट, एक एक करके मैं पहले बताता हूँ। ये 10 कहाँ से आया? ये हम ये जो यहाँ पे वैल्यू आती है ना, ये 2.5 और 7.5, इसको प्लस करके हम ये 10 और 10 यहाँ पे लिखते हैं। जो भी वैल्यू का एड अप होगा वो हम यहाँ नीचे लिखते हैं। अच्छा, अब और जो दूसरा क्वेश्चन था, इंटू 50 करा है दोनों को, ठीक है। कभी ml में होता है तो उसको into करना है, तो इस पे यूनिट का कोई वो नहीं है। हम ग्राम्स में हो चाहे मिलीग्राम्स में हो, ये नहीं कि हमें इसको लीटर में करना है या मिलीग्राम में करना है फिर इसको इंटू करना है। कोई ऐसा कुछ बात भी नहीं नहीं, है रिस्ट्रिक्शन। जैसे ऐसा कुछ भी नहीं 50 है। ग्राम लिखा है ये तो हम इंटू 50 कर देंगे इस पे। ये मैं बताता हूँ आपको, ये इट क्या हो कुड रहा बी है। 100 ml, 1000 ml। जो भी यहाँ लिखा होगा ना फाइनल वॉल्यूम, आपने वही लिखना है, आंसर भी ग्राम में आएगा। अगर ये ग्राम में था ना, ये वाला आंसर भी ग्राम में आएगा। अच्छा, ये हम कर रहे हैं मिक्सअप, लिक्विड्स का भी और सेमी सॉलिड का भी, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों का मिक्सअप है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो किसी में ग्राम भी आएगा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में, किसी में ml भी आएगा, तो आप उसको इस तरीके से कर ले। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी कोई पूछ रही थी? तो जो परसेंटेज है उसका भी कुछ आएगा इसके साथ कुछ या नहीं आएगा, सीधा मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करें सिर्फ। और कोई क्वेश्चन किसी का? अगर एमसीक्यू में कोई और यूनिट दिया हुआ हो तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। इन केस 50 ग्राम में अगर आंसर आ रहा है हमारा ग्राम्स में, तो और अगर आंसर में माइक्रोग्राम्स में दिए हुए हैं तो हम आंसर को कन्वर्ट कर लेंगे एट द एंड। हाँ जी, एट द एंड करें, लेकिन वो मैंने देखा है ऐसी टेक्निकलिटी इसमें होती नहीं। दरअसल एक पार्ट को जो सॉल्व करने को कहते हैं ना कुछ, वो यही होता है। वो इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी आई डोंट थिंक डालेंगे। ओके। मे भी अगर आती है तो आप उसको भी टैकल कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ हमें आती है, यूनिट कन्वर्जेंस। द थिंग इज कि यहाँ पे अगर ग्राम लिखा है ना 50 ग्राम, हमने यहाँ मल्टीप्लाई बाई 50 किया है, तो ये एंड कीप इन माइंड कि ये आंसर भी ग्राम में ही आने वाला है। ओके, ओके मूविंग सर, थैंक यू, फॉरवर्ड। समझ आ गया। ये इस वाले फॉर्मूले को लिखें सारे।
Okay, well done. 9% have done this. Let's look at the answer. Simple, very simple. They have just asked us for the proportions or this 1.5 thing. That's it. This is going to be the answer if they ask you. सर आंसर कितने आए? Answer ये 1.5 is the answer. रेस्ट आप जब आंसर करेंगे ना प्रैक्टिस, 1.5 आएगा. आंसर 1.5 या इसकी वजह यह है कि इन्होंने पूछा है इन व्हाट प्रोपोर्शंस। तो हम जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आगे, उससे आगे तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि टोटल वॉल्यूम कितना है। अगर वो टोटल वॉल्यूम दें या टोटल मास दें, फिर हम इसको आगे चलते हैं, यहाँ से डिवाइड करते, प्लस करके, मल्टीप्लाई करके आगे और फिर आंसर लेते। जब इन्होंने नहीं दिया हमें कोई फाइनल वॉल्यूम या मास, तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है। In what proportions? So these are the proportions. 1.5 proportion of 8% and 1.5 proportion of 5%, mean equal proportion of both. But don't go into that detail. Just this is the answer. Now we are moving forward with, while you practice, you will understand it in more detail. I'm left with only 10 minutes. I need to move fast and I want you to keep the pace with me. Now about the concentration. Now we are going one step deep into the questions. How? I want you to understand the concentration of active ingredient in solute and solvent. It's very simple. We know if there is a solute, pure solute, this is going to be 100% of active ingredient. If there is solvent, this means, for example, it is water. What is the concentration of active ingredient in it? It's 0%. This concept is clear to everyone. This is a very basic concept. Yes, No, sir. sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Sir, Active you are saying ingredient, there is no solute in it, and the solvent is pure. solute is Without pure. solute, Solute क्या होता है? Solute होता है जैसे there HCl is है। no solvent in it. हाँ, नो सॉल्वेंट इन इट। Okay. वो उस डिटेल में नहीं जाए, इतनी Okay, डिटेल got में it, रहे sir. हैं जितनी मैं बता रहा हूँ कि सोल्यूट अगर है ना, Okay. जैसे कोई HCl है, तो अगर हम सिर्फ HCl की अगर आप बात करेंगे ना फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, तो हम उसको 100% कंसिडर खुद ही कर लेंगे कि दिस इज HCl, दिस मीन्स इट्स प्योर। अगर हम कोई Okay, डाइल्यूएंट got it. सॉल्वेंट की बात करेंगे, जैसे वाटर डालना है या हम कोई बेस और ऐड कर रहे हैं, उसके साथ परसेंटेज नहीं लिखी हुई, तो दैट मीन्स वो 0% है। वी विल आइडेंटिफाई कि ये इसमें से सोल्यूट कौन सा है, इसमें से सॉल्वेंट कौन सा, जिसकी परसेंटेज नहीं दी हुई हमें। अभी के लिए ये चीज क्लियर आपको, जो सोल्यूट अगर आपको कहे ना कि HCl आपने ठीक डालना है। है, तो वो उसका मतलब ऑटोमेटिकली है कि वो 100% है। अगर आपको कहेंगे कि पानी डालना है, डिस्टिल वाटर, तो वो ऑब्वियसली वो 0% कंसेंट्रेशन है उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट की। दिस इज क्लियर। Okay. Yes, this is clear, sir. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ आई वांट यू टू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर से कौन सा है हमारे पास दी हुई ऐसी चीज है, या सोल्यूट है या सॉल्वेंट है जिसकी परसेंटेज नहीं दी। Solvent. सॉल्वेंट क्या है इसके अंदर? Distilled water. Distilled water. डिस्टिल वाटर। Distilled और डिस्टिल water. वाटर की क्या परसेंटेज है, यहाँ लिखी नहीं हुई। 0%. 0%। एक्सीलेंट। तो X0. नहीं भी लिखी, अगर ये एथेनॉल लिखा होता ना यहाँ पे, और एथेनॉल के साथ ये परसेंटेज नहीं लिखी होती, तो दैट मीन्स क्या था? हम एथेनॉल 100% लेंगे। 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आइडेंटिफाई करें क्या चीज है, सॉल्वेंट या सोल्यूट, और कितने परसेंट है। सॉल्वेंट वाटर है सर, सॉल्यूट जो है वो फिनॉल। Solvent again. सॉल्वेंट अगेन। और डिस्टिल वाटर है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ डिस्टिल वाटर एंड 95% एथेनॉल, तो डिस्टिल वाटर Yes. 0%। 0%. 0%। नाउ We नेक्स्ट will थिंग, take 100%. गुड नेक्स्ट। It's the active ingredient, solute. Okay, perfect. So these are the two things, ictamol and 5% weight by weight ictamol. These are the two things we need to combine, and this ictamol is 100%. Yes, sir. Okay, ठीक है, जहाँ पे अब 100%. एक्टिव इंग्रेडिएंट अकेला दे दिया ना हमें कि एक्टिव इंग्रेडिएंट को बाकी फॉर्मुलेशन के साथ मिक्स कर लें आप, तो दैट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट 100% हम उसको कंसीडर कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ये इक्थामोल है तो और इसको ये सॉल्व नहीं करना, तो उसको प्लीज बताओ। नहीं, सॉल्व करते हैं आगे चल के। अभी मैं जस्ट आपको आइडेंटिफाई करवा रहा था कि इसको ना क्या होता क्या है, किस तरह से आपको नजर आएगा।
ठीक, ये चीज सबको क्लियर है कि इक्तामोल इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसमें हमने ऐड करना है, और सेकंड चीज ये 5% वेट बाय वेट इक्तामोल है। तो ये वाला जो इक्तामोल है, इसका इसका मतलब है कि ये 100% है, अगर परसेंटेज साथ नहीं लिखी तो, क्योंकि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सही ओके सर। ये इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, क्योंकि अगले स्टेप्स में यही यूज होने वाला है। नहीं, क्लियर है। नहीं क्लियर? पीछे चलते हैं वापस। क्लियर है सर clear। नहीं, क्लियर है, मैं कह रही हूँ नहीं, क्लियर अच्छा है हमें ये सब। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट ऐसा करें, इसका फार्मूला लिखें। गुड गुड। 6 हैंड रेज्ड। अभी किसी ने नया ज्वाइन किया, उसको मैं बता देता हूँ कि ये जो डिस्टिल वाटर यहाँ पे लिखा है ना, दो चीज़ें हमने ऐड करनी है इसमें, एथेनॉल 95% और डिस्टिल वाटर। और ये डिजायर्ड है, प्रिपेयर 1000 ml ऑफ एथेनॉल। ये जो डिस्टिल वाटर है इसको हम 0% कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये सॉल्वेंट है। ओके, 9 हैंड रेज्ड, वी विल मूव फॉरवर्ड। दिस इज द आंसर, जस्ट check it that you have written the correct things. सही है सबका? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर बता दे मुझे। सर मैंने 100 लिया है इसमें परसेंट, जीरो की जगह। 100% इथेनॉल, 95% और 20%, क्योंकि आपने हंड्रेड कहा परसेंट था आपने I कहाँ से have दिया? also 100, but I have misplaced it, displaced it. जगह थोड़ी चेंज कर ली, लेकिन लिया ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, यूजिंग, ये यूजिंग लफ्ज पढ़ रहे हैं आप, यूजिंग एथेनॉल 95% एंड डिस्टिल वाटर, ये दो चीजें जो आपको इस्तेमाल करनी है। अच्छा। ठीक है, सही। यूजिंग एथेनॉल 95% एंड डिस्टिल वाटर, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। बाकी इक्वेशन छोड़ दे, ये बस स्कैन किया करें आंखों से कि क्या क्या चीज कहाँ से उठानी है, दैट्स इट। तो ये 95% ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 95% बड़ा है, और डिस्टिल वाटर की 0% रखनी है हमने, तो ये नीचे है। बाकी सारा कुछ आपको आता है। ये 1000 कहाँ से आया? यहाँ से है, प्रिपेयर 1000 ml, और ये आंसर है सर इसका। ये दो आंसर आ रहे वो हैं तो सर, ऐड कर रहे हैं, उन दो को हम ये लेंगे, और बता जिसका देंगे। नहीं दिया हुआ होगा वो 0% होगा, और जिसका जो एक्टिव होगा वो 100% होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये मैं पहले कह चुका हूँ, ये 3 स्लाइड पीछे। क्योंकि मैंने 100% ले लिया था, इसलिए मैं बोल रही थी। ये आपने क्योंकि अगर हंड्रेड डिस्टिल वाटर परसेंट 0% है तो इथेनॉल 100% हो जाएगा ना, मैंने इस तरह नो, से ले लिया था। ओके ओके, नाउ यू गेट द करेक्ट थिंग। यस सर। सर ये 2% दो आंसर आ रहे हैं, आप प्लीज बता देंगे ये हाँ जी, किसका ये दो ये आंसर। दो आंसर इसलिए आ रहे हैं कि नॉर्मली ये जो फार्मूला हमारा ना, ये दोनों ही कैलकुलेट कर देगा। लेकिन क्या है, ये क्वेश्चन पढ़े कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल 95% इज नीडेड, व्हाट दे आर आस्किंग। ये जो 95% है ना, ये सिर्फ इसका पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या है। तो एमसीक्यू के अंदर जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ना, सपोज उसमें एक ये लिखी हुई है ऑप्शन, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने हमसे पूछा नहीं हुआ इन्होंने, तो इसको फर्दर तो कैलकुलेट नहीं अगर करें हम। ये वाला आंसर क्या होगा कि डिस्टिल्ड वाटर कितना चाहिए होगा। हाँ, अगर आपसे पूछ लेता है डिस्टिल वाटर कितना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर आप निकाल लें। अगर दोनों का पूछते हैं तो दोनों का निकाल लें। ये जो ये जो आंसर निकलता है ना ऊपर, ये वाला, इस तरफ वाला, जो ऊपर निकले या नीचे निकले, ये कोरस्पॉन्डिंग टू दिस परसेंटेज होता है। अब ये 95% है ना ऊपर, तो ये ऊपर जो आंसर निकला वो भी ये 95% का ही निकला, कि ये कितना डालना है। और नीचे वाला आंसर जो निकलेगा वो इसका निकलेगा कि 0% जो भी सोल्यूशन है, वाटर है या कोई और चीज बेस है, तो उसका कितना ml या ग्राम डलेगा। अच्छा ऐसा है कि ये ना मीटिंग किसी वक्त खत्म हो जाएगी, तो दोबारा ज्वाइन करनी है आप लोगों ने, अगर ये खत्म हो जाती है, कुछ चीजें रहती हैं। अच्छा, ये जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना, आप लोगों के क्वेश्चन आते जाएंगे, वो क्लियर भी होते जाएंगे। यहाँ से आगे चलें। Yes, sir. यस सर। इसको सॉल्व कर लें जल्दी से। गुड। ओके, माशाल्लाह।
Rita Zara, Sadaf, Myra Shah. Good, good, good. Okay, let's see the answer. This is the simple answer because they were talking just about the proportions. What proportion of distilled water? 95% ethanol. And 65 is our desired concentration. This is the answer. I think we should join again. And we will join after 5 minutes because it will take some time to process the recorded video. Okay, guys, I am ending the meeting. We'll join again in 5 minutes. Okay, sir. अच्छा जी, हम इस क्वेश्चन पे थे। मेरी आवाज सुन सकते हैं ना आप सब लोग? जी सर। यस सर। Yes. यस सर। थैंक यू। अच्छा, इस क्वेश्चन पे थे और इसके अंदर सिर्फ उन्होंने प्रोपोर्शन मांगे थे हमसे कि व्हाट प्रोपोर्शन डिस्टिल वाटर एंड 95% एथेनॉल आर रिक्वायर्ड, दैट्स इट। तो वो हमने इनको दे दिया इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करें हम। ओके, माशाल्लाह रिदा ज़ारा सबसे पहले कर लिया आपने। जल्दी से कर लें भाई, बाकी भी बहुत आसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कर लें। अच्छा, 7-8 हैंड अप रेज हो चुके हैं, तो अब इसका आंसर देखते हैं। सिंपल, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि व्हाट वॉल्यूम्स ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल 95% एंड डिस्टिल वाटर, सो दीज आर टू थिंग्स। यू विल राइट हियर 95% 0 एंड शुड बी मिक्स्ड टू प्रोड्यूस। एंड शुड बी मिक्स टू प्रोड्यूस 100 ml फाइनल आ गया ये हमारे पास, 1000 ml ऑफ एथेनॉल 70%, एथेनॉल 70% डिजायर्ड कंसंट्रेशन में आ गया। अब ये देखें, जो क्वेश्चन पहले पूछ रही थी मुझसे कोई कि ये ml और ग्राम वगैरह कैसे करेंगे। देखें ये जो 1000 है ये ml में है, तो आंसर भी ml में ही होगा। तो ये अपने यूनिट्स का यहाँ से ख्याल करना कि जो भी ये होगी ना डिजायर्ड कंसंट्रेशन, या ग्राम में हो, mg में हो, ml में हो, लीटर में हो, आंसर भी उसी में होगा। और इस चीज़ के ऊपर आई बिलीव वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कोई बंदा कि वो कोई कन्वर्जन मांगे। बस जो वो देखना चाहते हैं वो ये है कि आप कर सकते हैं एलिगेशन या नहीं। आगे चलें जी। यस सर। जी। अच्छा, अब इससे एक स्टेप और आगे जा रहे हैं हम लोग। आई विल फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड इन उर्दू एंड देन आई विल रिपीट एवरीथिंग इन इंग्लिश। अब ये क्या होने जा रहा है यहाँ पे कि हमें ना वो एक जो हम निकाल रहे हैं आंसर, आंसर जो हम निकाल रहे हैं कि इतने ग्राम ये फलां चीज़ डलेगी ना, वो हमें पहले से दे देंगे। और ये वाला क्वेश्चन मुझे अपने एग्जाम के अंदर आया था, एक्सट्रीमली इजी। जस्ट छोटा सा इसके अंदर ट्रिक लगेगा, छोटी सी मैनिपुलेशन लगेगी और ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो देखते हैं कैसे। अब अगर हम इसको फेल करना शुरू करें ना, एलिगेशन वाले फॉर्मूले को, तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम प्रीवियसली कर रहे थे। हाउ मच सैलिसिलिक एसिड इज रिक्वायर्ड। अब इसको छोड़ दें। टू बी एडेड टू 64 ग्राम बैच ऑफ 4% वाइनमेंट इन ऑर्डर टू मेक 10% स्ट्रेंथ। आइडेंटिफाई करते हैं, तीन चीज़ें यहाँ पे हैं। एक सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड कितने परसेंट होगा? 100%. 100%. 100%। 100%. 100%। 100%, क्योंकि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट। अच्छा, इज रिक्वायर्ड टू ऐड टू 64, ये इसको छोड़ दें, ओवर 4% वाइंटमेंट। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, सैलिसिलिक एसिड और 4% वाइंटमेंट। ये सैलिसिलिक एसिड 100% हो गया, एक ये 4% आ गया। और डिजायर्ड क्या है? इन ऑर्डर टू मेक 10% स्ट्रेंथ। फिल करना शुरू करते हैं। 100 नीचे आ गया, ये 4 और ये 10 इधर आ गया डिजायर्ड के अंदर। इसको करें, 100 में से 10 गए 90, 10 में से 4 गए 6, और 90 और 6। 92. कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या ऐसे कोई नॉइस आ रहा है? अच्छा जी,
सारा कुछ वैसे चला। 90 और 6 कंबाइन एडिशन कर लें, इनकी 96 बन गए, या नीचे लिखते हैं 96 दोनों में। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर ये बताया जाए कि ये 64 ग्राम आप डाल 64 ग्राम आपने ऐड करनी है 4% की, ये पहले किसी क्वेश्चन में नहीं था, ये अभी आया है कि 64 ग्राम, ये फाइनल नहीं है, इसको पढ़ना है आपने, ये फाइनल नहीं है। 64 ग्राम बैच ऑफ ए 4% वाइटमेंट, ये बैच को लफ्ज को छोड़ दें, ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको। सो 64 ग्राम ऑफ 4% सर मुझे वाइटमेंट समझ आपने नहीं डालनी आ है। रहा, आप थोड़ा फिर से समझाएंगे? फिर से समझा देता हूँ। तीन, ये अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जो हमने एलिगेशन मेथड को फिल कर लिया, 100% सैलिसिलिक एसिड का ये लिख लिया, 4% हमने ये लिख लिया, 10% डिजायर्ड स्ट्रेंथ थी वो भी ये लिख ली, ये भी हमने कर लिया। अगला स्टेप, ये 6 आ गया, ये 90 आ गया, 96 भी आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर। यहाँ तक जी तो सर। क्लियर है, ठीक है, ये हम प्रीवियसली कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इन्होंने हमें बता दिया कि आपने 64 ग्राम डालना है इसका 4% का, इससे ज्यादा आप डाल नहीं सकते, और ये आपने पूरा डालना ही डालना है। आप बताएं कि दूसरा कितना डालेंगे। तो ये 64 ग्राम पता कौन सा बता रहे हैं हमें, 64 ग्राम और 4% वाइटमेंट। पहले तो हम ये निकाल रहे थे, ये 64 ग्राम पहले हम आंसर में ये निकाल रहे थे कि 64 ग्राम जी ये 4% डाल दें। अब वो पहले ही कह रहे हैं कि 64 ग्राम तो आपने डालना ही डालना है 4% का। आप बताएं 100% वाला जो है ये सैलिसिलिक एसिड, इसका कितना डालेंगे। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, ये हमें नहीं इन्होंने बताया कि कुल कितनी आप क्वांटिटी बनेगी हमारे पास। इन्होंने हमें बताया कि 64 ग्राम आपके पास है 4% ऑइंटमेंट, ये आपने डालनी है लाजमी। और अब बताएं बाकी जो दूसरा है जो सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है, ये कितना डलेगा। इस चीज़ की समझ आई अब किसी को? यस हाँ सर। इसी सर, की तो समझ। मुझे आई। यस सर, आगे समझ। मैं एक दफ़ा फिर से बताता हूँ, ये उर्दू में बताने का मकसद ये था कि मैं इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकूंगा। पहले हम फाइंड आउट कर रहे थे कि ये सैलिसिलिक एसिड हो गया और ये 4% ऑइंटमेंट होगी, ये कितनी कितनी हम डालेंगे तो ये 10% स्ट्रेंथ बनेगी। सैलिसिलिक एसिड 100% डाला हमने, एक 4% ऑइंटमेंट है, वेरी गुड। तो हम आते चलते हुए तो हमें ये बताते कि आंसर निकाल के बताते कि इतने ग्राम ये डाल लें, इतने ग्राम ये डाल लें, तो ये 10% बन जाएगी। अभी इन्होंने हमें दे दिया कि 64 ग्राम ही आपने डालनी है 4% ऑइंटमेंट। स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। हाउ मच सैलिसिलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, कितना सैलिसिलिक एसिड हम डालेंगे टू अ 64 ग्राम ऑफ अ 4% ऑइंटमेंट। 64 ग्राम ऑफ अ 4% ऑइंटमेंट, दिस इज टाइटली रिलेटेड, 64 ग्राम्स ऑफ 4% ऑइंटमेंट। इस चीज का आप अपने ख्याल रखना। ये क्वेश्चन मुझे आया था, नॉट विद एग्जैक्ट वैल्यूज, लेकिन इसी तरह का, इन ऑर्डर टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 10%। मेरा ख्याल है कि इसको समझ आज नहीं चाहिए था अब तक। यहाँ तक किसी को नहीं आई तो मुझे पूछे, मैं दोबारा बताऊंगा। कोई एक बंदा रह गया हो जिसको समझ नहीं आई। सर ये हमने जो लिया है इसको 64 हमने नीचे क्यों लिया है, हम ऊपर 9/6 96 से क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ हाँ पे जी, सॉल्व? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, नीचे क्यों आपको सॉल्व मैंने करें? बताया था। 4% गुड अवॉइडमेंट की बात हो रही क्वेश्चन, है ना, तो हमें गुड सिक्सटी अपॉन क्वेश्चन। 96 से सॉल्व करना चाहिए। नहीं, मैं बताता हूँ। ये जो आंसर आता है यहाँ पे, ये 100 वाले का आंसर यहाँ पे आएगा, और 4% वाले का आंसर यहाँ पे आएगा नीचे। जो ऊपर है उनके आंसर, और वो कंसंट्रेशन ऊपर, नीचे वाले नीचे। तो ये 64 जो है ना, 64 ग्राम ऑफ 4% ऑइंटमेंट है, तो 4% का ही रिजल्ट आएगा ना 64 ग्राम, क्योंकि ये दोनों टाइड अप हैं। ओके, गॉट इट उसके सर। साथ नहीं कोई लिंक उसका। 100% तुमने फाइंड करना, हाउ मच सैलिसिलिक एसिड, ये दिस इज सैलिसिलिक एसिड 100%, तो ये तो हमने फाइंड आउट करना। अच्छा, आगे चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। अब क्या करें, अब ये हमने 64 यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 64 अब इसका रिजल्टिंग आंसर है। अब ये एक्स है हमारे पास, ये दोनों यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, नीचे भी और ऊपर भी। अब ये हमें एक्स फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ गई हैं, ये 90 है, ये 96 है, और ये इज इक्वल टू के बाद 64 है। अब ये जो एक्स है ना, एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और ऊपर लगाएंगे। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ऊपर से तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर तो दो वैल्यूज मिसिंग है, एक्स और ये इज इक्वल टू के बाद भी मिसिंग है। नीचे हमारे पास 64 ग्राम अवेलेबल है।
तो हम इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। सेकंड स्टेप ये है, ये फर्स्ट स्टेप था जस्ट लाइक नॉर्मल। सेकंड स्टेप करें, इसको रीअरेंज करें, और ये आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 64, ये 96 ऊपर आ गया और ये 90 नीचे आ गया। ये आएगी x की वैल्यू 68.27। ये रीअरेंजिंग की समझ आ गई सबको? जी समझ आ गई। चले, अब थर्ड Yes, स्टेप yes. पे चलते हैं। थर्ड Yes, स्टेप sir. थर्ड स्टेप पे चलते हैं। इसी को अब हम ऊपर वाले x के अंदर पुट कर देते हैं। ऊपर वाले x के अंदर ये मैंने टोटली दोबारा लिख दिया फिर आपके लिए। थर्ड स्टेप यही 6 है, ये यहाँ पे, यही 96 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई बाय यही वैल्यू जो x की बनती है इज इक्वल टू, ये हमारा अब आंसर आएगा। तो ये हमें 2 स्टेप एडिशनल करने पड़े हैं x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें पता लग गया कि जो क्वेश्चन हमें कह रहा था हाउ मच सैलिसिलिक एसिड इज रिक्वायर्ड, तो दिस इज द आंसर, 4.27 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज रिक्वायर्ड। किसी को समझ नहीं आई हो इसकी? नहीं सर, समझ आ गई। अच्छा, कोई एक बंदा हो जिसको समझ नहीं आई हो, मैं दोबारा समझाऊंगा। अरे एक बार वो 68.27 वाला बता अच्छा, दो। ये जो लिखा हुआ था ना 64 ग्राम ऑफ 4% ऑइंटमेंट, दैट मीन्स का 64 ग्राम ऑफ 4% ऑइंटमेंट हमने इस्तेमाल करना ही करना है इसके अंदर। इससे कम भी नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब हमें फाइंड आउट ये करना था कि सैलिसिलिक एसिड कितना इस्तेमाल होगा। ये 64 ग्राम जो है ना, अगर हम इसको इस इक्वेशन के अंदर कहीं पे भी एडजस्ट करें ना, इस पूरे फार्मूले के अंदर जो हमने सीखा हुआ पहले, जो इस क्वेश्चन से पहले हम जितना भी सीखते आए हैं, 64 ग्राम को अगर हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सके ना, तो वो यही जगह बनती है इसकी, इज इक्वल टू 64 ग्राम की। 4% कंसेंट्रेशन की जो ऑइंटमेंट है, ये कितनी इस्तेमाल होगी? 64 ग्राम। हाँ, ये अच्छा होगा, ये अच्छी स्टेटमेंट मिल गई मुझे कि इसको अगर हम ट्रांसलेट करें फार्मूला के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि 4% ऑइंटमेंट कितनी यूज करनी है हमने? 64 ग्राम्स। और ये ऊपर वाली कितनी यूज करनी है, ये अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब x आपको पता है कि अगर हमारे पास एक फार्मूला ना जिसमें 4 वैल्यूज हैं कुल, तो एक, जैसे हमने परसेंटेज का फार्मूला भी पढ़ा था, अगर कोई एक मिसिंग हो ना, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही मिस है, x की वैल्यू, ये हमने खुद खुद ही लिखा है यहाँ पे x। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मैथमेटिकली जो है ना वो सॉल्व ये करते हैं कि x इज इक्वल टू, ये 64 ग्राम, ये 96 ऊपर आएगा, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो ऊपर आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 96, और ये 90 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 90। ये, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 68.27। ये वैल्यू निकली है एक्स की। यहाँ पे भी एक्स की ये वैल्यू निकली है, यहाँ पे भी एक्स की यही वैल्यू निकली है। सेम वैल्यू होती है ना दोनों तरफ, ऊपर और नीचे भी। तो 68.27 आप यहाँ पे पुट करेंगे ऊपर। अच्छा, क्यों गए हैं हम ऊपर ये वैल्यू पुट करने, क्यों गए हैं? क्योंकि हमें डिटर्मिन ही क्वांटिटी ऑफ 100% करनी थी जो सैलिसिलिक एसिड है, कि हाउ मच सैलिसिलिक एसिड। तो डिटर्मिन तो हमने ये ऊपर वाली वैल्यू करनी थी। तो फिर इस यहाँ पे x की जगह पे लगाएं इसकी वैल्यू को 68.27, तो आंसर आपके पास 4.27 ग्राम आ जाएगा। दिस इज द आंसर कि हाउ मच सैलिसिलिक एसिड, 4.27 ग्राम्स। अगेन दोबारा बताऊं? गॉट इट, थैंक यू। अच्छा, अब ऐसा करें। जी सर, बस समझ में आ गया। Got it, आंसर got it. अच्छा, ऐसा करें, आप सब लोग ना इसको करें सॉल्व, देखें कहाँ पे कौन फंसता है, मैं फिर दोबारा बताऊंगा। सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन करें, और अगर पहले से आपने लिखा तो उसको नहीं देखें, आप इसको दोबारा से करने की कोशिश करें। ओके मिस ब्रिलियंट, और um, ये माशाल्लाह और भी लोगों ने कर लिया। कोई बात नहीं, इसमें कोई जल्दी नहीं करनी आप लोगों ने। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मुझे आप 100 दफा भी पूछेंगे ना,
तो मैं 100 दफा भी बता दूंगा आपको, लेकिन समझ लें आप इसको। Okay, Rifas, my friend, you here. You understood what I told in Urdu? Few, only few. It's okay? Yes, sir, yes, sir. Okay. Okay, 5 plus 6% raised hand. I need all of you to raise hand, then I'll move forward. सर वन क्वेश्चन। जी जी। सर अगर टोटल में से हम 65 ग्राम वैसे ही माइनस करें तब भी तो आंसर वही आएगा ना, तो हम इस तरह कर सकते हैं। आप में उस तरीके को नहीं अप्रोच नहीं करें। आपको जो मैंने तरीका बताया ना, इसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी हुई ना, वैल्यूज चेंज हुई, तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। अगर आपका हम्म। अपना कोई शॉर्टकट बनता है, बी केयरफुल और वेरीफाई कर लें चीज़ों को, तो आप बना लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। लेकिन इसको ना एक फ्लो एक ही फाइन, रखें और थैंक यू। उसी को आप थ्रू आउट आप उसी को फॉलो करें। जैसा कि अब आगे चलेंगे हम, मैं आपको एक दिखाऊंगा एग्जांपल। वो किताब में किसी और तरीके से सॉल्व हुआ है, उसे हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। पहले भी हम प्रीवियस सेशंस में ये देख चुके हैं कि किताब के अंदर इतना बड़ा सारा फार्मूला होता है, वो हम अपना लगाते हैं तो वो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? नहीं, बस आप वेरीफाई कर लें कि ये आपने सही इसको सॉल्व किया। आंसर शुड बी सेम। So mine answer was 4.26. Oh, it's okay. Is it Yes, applicable? it's okay. All right, we have completed this allegation method. How difficult was it? इजी सर। So it's Was quite easy, difficult, but but it's some tricky. It has some tricky part. बस स्टैंड करना है कि कहाँ पर क्या चीज पुट करनी है। हाँ जी, बस अंडरस्टैंड करना, स्कैन करना आंखों से आपको कि ये जो 3 वैल्यूज है ना, ये कौन सी हैं। ये जो आपने ऊपर लिखनी, नीचे लिखनी और रिक्वायर्ड लिखनी। अगर तो बस उन्होंने कंसंट्रेशन ही पूछी है, फिर तो बहुत इजी है। फिर तो बहुत ज्यादा इजी। चलिए कुछ भी पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, वी शुड बी रेडी। और एक और चीज पॉइंट मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो बड़ी होगी ना इसमें अमाउंट, जैसे ये 100 बड़ा 4 से, तो ये ऊपर आएगा। ये आपने बहुत केयरफुली इस चीज को देखना। ये नीचे आया ना तो सारी कैलकुलेशन उल्टी हो जाएंगी। अच्छा जी, एक चीज अब देखते हैं जो प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट, कि हमें इसको अपने तरीके से सॉल्व करना है हर एक चीज को। हमें नहीं किताब को बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करना। अगर आपको लगता है कि कोई तरीका है कि हम अपने तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं, वो आप बिल्कुल करें। आंसर सेम आना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं, अब वन स्टेप और हम इससे आगे चले जाते हैं। सॉरी, नाउ वी गो वन स्टेप फर्दर and we will take distilled water as diluent where not given. Previously, there was distilled water given in the question, all of the questions that you have solved with me. But sometimes there is nothing given. They just ask you to dilute. See in this question, how much ethanol 90% is required to prepare 1000 ml of ethanol 45? What's happening in this question? This 90% is given, okay, you will write 90%. What is the desired is 45, you'll write 45. Now this 0 is not mentioned, not even any solvent is mentioned here. But we need to dilute it, right? So we will take dilution with distilled water ourselves and take it as 0%. Another way to do it, the way the book is doing it is this. The answer, take 45 part of this and dilute to 90 part, pretty confusing. We won't be getting anything. So do your own formula. Just we know that we need to dilute it somehow, right?
we need to make 45% out of 90%, we need to dilute it. So try adding this yourself to the formula, and then you will have the same answer with the book. X is equal to 500, X is equal to 500. I want you to try it on your register. This question, how much ethanol 90% is required to prepare 1000 ml of ethanol 45%? Do it on your registers. Yes, sir. Only 4%, 4% with raised hands, 5%, 6, 7, 8, 9. Just waiting for the 10th. Okay, 10, 11. Good, mashallah, you are doing very good, everybody. This was the last question I wanted to show you. और मुझे बस इससे ज़्यादा आसानी से मैं नहीं पढ़ा सकता था आपको। ये लास्ट टाइम जो मैंने सेशन दिया था उससे भी बहुत ज़्यादा आसान करके अब बताया। टुक मी सम टाइम टू प्रिपेयर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आप सब लोगों को अब आ गया होगा, और ये जो एलिगेशन मेथड का एक डर होता है वो खत्म हो गया होगा आपके जहन से। इसी तरह के सारे सवाल हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी ये नहीं होता। हाँ, वो क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जिसके अंदर 2-3 दफ़ा आ जाए ना परसेंटेज वेट का वॉल्यूम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो जो क्वेश्चन अभी ग्रुप में भी कोई पूछ लेता है तो वो वाकई वो कंफ्यूजिंग होते हैं, वो ज्यादा इससे ज्यादा जान खा लेते हैं। तो ये अब अगर आपको आ गया है और आपकी आईज स्कैन कर लेती है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये एलिगेशन से सॉल्व होने वाला है। अच्छा, 2 कंसंट्रेशन दिए हैं, इसके मिड की कोई कंसंट्रेशन बनानी है, मीन्स एलिगेशन है। फौरी स्कैन करें कितनी कितनी परसेंटेज दी हुई है, क्या इसके फाइनल अगर ये दिया हुआ है जैसे ये 1000 ml है, और ये जो हमने डिस्कस किया कि सॉल्वेंट या सोल्यूट दिया हुआ है तो इसकी कितनी परसेंटेज आपने लिखनी है, फौरी तौर के ऊपर इसको सॉल्व कर लें। और अगर आपको ये प्रीवियस स्टेप के ऊपर भी जाना पड़ता है, इस वाले के ऊपर भी, तो ये भी कोई हैक्टिक नहीं लेना आपने, ये बहुत आसान है। ये हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ इस फार्मूले के अंदर। एक हमने रीअरेंज कर लिया इस फार्मूले को, इस इक्वेशन को, और एक हमने वो एक्स के अंदर पुट करके उसकी वैल्यू निकाल ली है, कुछ भी नहीं हुआ इसके अलावा। तो अब आपका होमवर्क क्या है, ये अगर आपने अभी नहीं किया ना प्रैक्टिस तो फिर आप भूल जाएंगे, और अगर अभी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यू विल मेमोराइज इट फॉर एवर। ये मैंने 1 साल पहले किया था, मेरा एग्जाम आपसे 1 साल पहले था। मैंने उसके बाद मिड में नहीं, कहीं पे भी नहीं सीखा एलिगेशन मेथड, लेकिन मुझे आता आज भी है क्योंकि मैंने उस वक्त सीख लिया था। तो ये अगर आपने इसको किसी और एंगल से देखना है, एक दफा जाके फिर वो जो 2 घंटे वाली मेरी वीडियो है ना, फर्स्ट वाली पार्ट 1 कैलकुलेशन, उसके अंदर भी यही मैंने बताया हुआ है। एक और अगर एंगल से देखना है कि किसी थोड़े से डिफरेंटली इसको देख लें इसी टॉपिक को, तो वहां से भी देख सकते हैं, उसमें भी कवर किया हुआ मैंने। अब आप लोगों ने, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द एलिगेशन क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 6 and 7, both chapters, this एलिगेशन मेथड questions are there and they are same, the way of solving them is same. The difference is going to be in the 6th chapter, you will find mLs because it's about liquids. Chapter 7 is about semi-solids. You will find grams there. Of Manoj University lectures. That's it. Practice is today so that you won't have to practice it or memorize or learn it till your CAPS exam. So that's it, guys. फिर भी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, anybody have any question, तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं आंसर करता हूँ भी। हेलो सर, हेलो मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर मैंने एपैक का मतलब मैं ये प्रैक्टिस करी थी 7 चैप्टर की, तो उसमें हम्म। एक क्वेश्चन था, उसमें डाइल्यूशन जो करा था वो पॉलीसॉर्बेट से करा था, तो उसकी कंसंट्रेशन हाई थी। तो हम वो उसमें ना मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे ये वाला मेरे को पता था कि हम हायर कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, उसमें नीचे थी हायर कंसंट्रेशन, वो वाला कंसेप्ट मेरे को नहीं आया था समझ में। ऐसा हो सकता है, मैं आपको बता दूँ, दिस इज पॉसिबल कि ये जो डिजायर्ड कंसेंट्रेशन है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिखा 70%, डिजायर्ड है 50%, ठीक है, और एक जी नीचे जो दिया होगा ना वो इससे बड़ा होगा, तो ये दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको इससे बड़ा ऊपर मिल जाए, 55 मिल जाए। आई थिंक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर, इससे बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये मैंने नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन देखा।
इन दोनों के अंदर से जो आपको कंसंट्रेशन बड़ी होगी ना वो आपने ऊपर ही लिखनी है। तो खैर ये भी एक डिफिकल्ट चीज़ है, वो आप क्वेश्चन शेयर कीजिएगा मेरे से, मुझसे प्राइवेट मैसेज कर वो दीजिएगा HLB वो। वैल्यू वाला है, HLB वैल्यू वाला सर क्वेश्चन है उसमें। दैट वाज विद एचएलबी वैल्यूज, और उसमें एचएलबी वैल्यू एक की शायद अराउंड 18 है और एक की 15 है। तो वो डाइल्यूएंट के हिसाब से अगर हम देखें ना, एचएलबी वैल्यू जिसकी ज्यादा डाइल्यूएंट वही होगा ना। वो इसी एलिगेशन का मेथड का है जी सर, एलिगेशन वाली है। जो अपन एक की करेंगे। 3.8 है और एक की 15 है। मुझे आप एक वहां से और देख के बताएं कितनी है। सर जो हमें Uh, रिजल्टेंट की है Obed, if you can quote the question number, it would be easier for us to create it. 7.2. Okay. The required HLB value of an oil in water emulsion is 13. Required है 13. ठीक है। What amount of glycerol monostearate, HLB value 3.8 and polysorbate 80, HLB value 15 should be used नहीं ये तो if डिफरेंट 150 हो गया gram ना, मैं बताता हूँ। ये तो डिफरेंट हो गए ना दोनों, ये डिफरेंट एलिमेंट और ये डिफरेंट एलिमेंट है। yes sir. वो ये वाला एलिगेशन के लिए है मेथड, एलिगेशन मेथड के Okay. लिए। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, मुझे दोबारा बताएं। सर इसमें रिजल्टेंट जो वाटर इमल्शन बनाना है उसकी HLB वैल्यू है 13 एंड जो दो पार्ट है जैसे ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट की 3.8 है और पॉलीसॉर्बेट 80 की 15 है। मेरा कंफ्यूजन ये था कि हम जो हायर कंसंट्रेशन है जैसे HLB वैल्यू पॉलीसॉर्बेट है वो 15 ऊपर लगते हैं बट वो ये सॉल्व नहीं मतलब फिर वो कंफ्यूजन जब MCQs आए थे वो दोनों आंसर दे रखे हैं उससे। एक मिनट ठहरे, मैं क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन खोलेंगे ना तो इजीली समझ आ जाएगा। जी ओके उबैद, क्वेश्चन नंबर अगेन। 7.21. 7.2। Yes sir, this one. Yes. The required HLB is of an oil in water emulsion is 13। ये तो कुछ और चीज़ है। What amount of glycerol monohydrate and polysorbate 80 should be used if 150 gram of emulsion is required? ये HLB वैल्यू कुछ और चीज़ है, ये परसेंटेज तो नहीं है। So they have done with allegation vector, नहीं नहीं, ये but इट्स नॉट एलिगेशन, इट्स लुक लाइक, ये जो हम कर रहे हैं ना इसका सोल्यूशन, इट लुक्स लाइक एलिगेशन, लेकिन ये एग्जैक्टली जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना, ये वो नहीं है, yes sir. ये डिफरेंट है इससे। क्यों, इसलिए ये 15 नीचे है, क्योंकि ये इन्होंने सॉल्व इस तरीके से किया इसको कि आपको एलिगेशन लग रही है और एलिगेशन की तरह सॉल्व कर लिया। बट इफ वी गो विद द परसेंटेजेस के एक ही चीज हमने यूज करनी है, वो ऊपर नीचे आएगी। Yes, जो HLB है ना, HLB इज अ डिफरेंट थिंग। yes sir. इसकी मुझे फिर अभी ना आपको समझाने के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन वो अभी नहीं बना के फिर मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा आपको अलग से। ये इसका हिस्सा नहीं है। HLB वैल्यू इज समथिंग एल्स, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस इज नॉट अ परसेंटेज। ये जो हम पहले जितने क्वेश्चन किया है ना हमने यहाँ पे, ये परसेंटेजेस के होते हैं Yes तो sir. ये कि वाला इतने पार्ट रह परसेंट गया ये क्या है। चैप्टर 7 का? जी जी। Sir, in the ये आप पढ़ाएंगे कल? ये रह गया है HLB, ये पढ़ाएंगे कल ये चैप्टर 7 का ये ये जो पार्ट पता HLB क्या, ये वाला? जो आप छोटे छोटे चीज़ अगर इंडिकेट करके देंगे ना मुझे कि ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट आ गई, क्योंकि मैं एक ओवरऑल देखता हूँ टॉपिक को, तो वो उसके लिए मैं अलग से आपको समझा दूंगा कि अरे ये ये किस तरीके से एलिगेशन करना है। मेथड से हो रहा है। ठीक है कर सर, लें, आप सर उसकी कर एलिगेशन लें, क्लास में कर नॉट दो। नॉट द रूल, वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। कि जैसे इसके अंदर ये नीचे लिखा हुआ है, तो देर इज समथिंग कि जहाँ पे ये नीचे आएगा मुझे इसको डिटेल में देखना पड़ेगा कि ये क्या सर है। हम्म। सर एचएलबी वो बेसिकली अगर आप एचएलबी वैल्यूज देखें ना तो वाटर का कंटेंट जिसमें ज्यादा है ना दैट इज 15 वाली, तो वो डाइल्यूएंट हो जाएगा हमारा।
poly sorbate 80 is basically with HLB 15. It will act as a diluent. What amount of And chloride diluent हमेशा नीचे ही आएगा. अच्छा, ये खैर टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं इसको भी डिटेल में जाना भी नहीं चाहता इसकी, मैं थक गया हूँ। तो मैं ना इसको बना के इसकी एक वीडियो आपको अलग से दे दूंगा कि ये क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या था। अगर कोई इस तरह की चीज आया करे ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट सर से, तो आप नेक्स्ट मुझे क्लास इंडिकेट कर में दिया करें। नेक्स्ट क्लास में ना ओके सर। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मोलर क्वेश्चंस नाउ। दीज आर द स्मॉल पार्ट्स। ये जो इस तरह के अगर आते हैं ना कोई अलग से क्वेश्चन, जैसे हमने पहले भी सॉल्व किए थे 2 क्वेश्चन अलग से, सर तो बस ये यही कुछ difference है, बाकी सब एक्सेप्शन same है, बाकी हाँ, सब बाकी सब सेम ही होगा आपके पास। तो इसको देख यस लेंगे, सर। अगर इस तरह की एक्सेप्शन आती है तो वेरी गुड, आप पॉइंट आउट कर दें, मैं उसको आप देख के तो आपको समझा दूंगा कि ये क्या चीज़ क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना और क्यों ये ऊपर और नीचे आया है। यस सर, ओके सर। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नहीं सर। आई ओके थिंक नहीं, तो चले जी, इसको हम वाइंड करते हैं। ये आपने सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने हैं, फर्स्ट फ्रॉम दीज मोनाश यूनिवर्सिटी लेक्चर्स एंड देन फ्रॉम एपेक. Okay, all right, everyone. I'm going to finish the session now. Thank you, everyone, Thank for you. joining. Thank you. Hope you have learned the थैंक यू सर। allegation today. Thank you very much. You're welcome.